Hello everyone, welcome back to Vidya Setu, YouTube channel of Kendriya Vidyalaya Upper Camp Dehradun. I, Saeed Ahmed Khan, welcomes you in today's EVS class. So dear students, today we will discuss chapter 5 Seeds and Seeds. So let's begin our chapter. First of all, I will read the chapter and discuss the important things that we will meet across this chapter. So let's begin. Chapter 5 Seeds and Seeds. Gopal was waiting for his Mausi's family to visit them. They will be coming the next day for their holidays. He was thinking about all the fun and the nice food that he would have with his cousins. So there is a boy named Gopal who was waiting for his Mausi's family to visit them. जो अपनी मौसी की फैमिली का अपने घर आने का इंतजार कर रहा था. Why? Because they were coming the next day for their holidays. वो वहां पर क्यों आ रही थी उसके घर पर छुट्टियां बिताने के लिए. He was thinking about all the fun. वो सोच रहा था ढेर सारी मौज मस्ती के बारे में और उस खाने के बारे में जो वो जो है अपने कजन्स के साथ करेगा. जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट. लेकिन तभी गोपाल की मम्मी ने उसको कॉल आउट किया, उसको बुलाया या फिर उसको आवाज दी. गोपाल, बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सोक 2 स्मॉल बॉल्स या कटोरीज ऑफ चना. चना मीन्स ग्राम. डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोक? सोक माने क्या होता है? सोक माने होता है भिगोना. तो उसकी मम्मी ने उनसे क्या कहा कि सोने से पहले 2 कटोरीज किसके? चना के. चने तो आपने देखे होंगे घर में, सूखे से रहते हैं, ड्राई अप हो जाते हैं. तो क्या कहा कि उनको सोक कर देना, मीन्स पानी में भिगो देना. She was going to his bua's house and would return only in the morning. Why she instructed the Gopal for this? Because she was going to his bua's house and she will return in the morning. Now look at this picture, students. This is dried chana or gram, and when we pour water in this bowl, then what we are doing? We are soaking the chana in water. Now let's see further. As he was soaking the chana, Gopal thought, how will 2 small bowls of this be enough for 8 persons? जब गोपाल जो है चने को भिगो रहा था, then he thought how these 2 small bowls of chana will be enough for 8 persons. Why he was thinking so? Because जो चना जब हम डालते हैं तब सूखे होते हैं, जो वो कम हमको दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम उनको भिगो देते हैं तब क्या डिफरेंस आता है ये हम अपने चैप्टर में आगे देखेंगे. So he soaked another 2 bowls of chana. तो उसने क्या किया, उसको चने कम लगे तो उसने 2 कटोरी चना के 2 बॉल्स चना के और भिगो दिए और सोक कर दिए. When his mother returned the next morning, she saw that the chana was overflowing from the vessel. चना क्या हो रहे थे? चना जो वेसल से है बाहर गिर रहे थे. क्यों? क्योंकि गोपाल ने जो है कुछ ज्यादा चने भिगो दिए थे. How much did you soak? Asked his mother. Then Gopal mother asked him that how much gram did he soak? How did that happen? Wondered Gopal. तब गोपाल ने सोचा ये कैसे हो गया. You can see here बच्चों कि ये है देखो ड्राई चना. जब हमने इनको भिगोया नहीं है तब ये देखो कटोरी से कितने कम है. अब हमने फिर दूसरे बॉल में क्या है? We soaked it in water. Okay then what happened? Chana swelled up. Why swelled up? Because the water goes inside the chana, and due to which the chana swelled up, and after swelling their size increased, and
That's why they were overflowed in the vessel. You soaked too much. Anyway, it is good. Now I will cook half of them and leave the other half to sprout. Then Gopal's mother told him that you soaked too much of grams. Anyway, it is good. Now she told him that she will cook half of them and leave the other half to sprout. What is the meaning of sprout? Means to germinate, or in Hindi we say ankurit. You can see in this picture the grams, some grams, and these grams are sprouted. You can clearly see these sprouted chanas in this picture. I can send these to your aunt. What? Sprouted chanas or sprouted grams. The doctor has told her to eat sprouts. So the question is, why doctor has told her aunt to eat sprouts? That we will see in this chapter. Mother said, she tied half of the soaked chana in a wet cloth and hung them up to sprout. What she did? She tied half of the soaked chana in a wet cloth and hung them up to sprout. Now, let's see here. Dear students, we have seen that Gopal is soaking some grams in water. So the question is, what things are soaked before cooking in your house and why? आपने देखा होगा कि आपकी मामा भी घर में बहुत सारी चीजों को पहले पकाने से पहले सोक करती हैं. ऐसा क्यों करती हैं? So the answer is, following things are soaked before cooking. These are the things that we often soak before cooking. These are chana, moong, dry pea, rajma, soyabean, pulses, rice, etc. कई सारी चीजें हैं बच्चों जो हम पकाने से पहले जिनको हम सोक करते हैं. एंड वाई दीज थिंग्स आर सोक्ड? बिकॉज दीज थिंग्स बिकम सॉफ्ट आफ्टर सोकिंग. सोकिंग के बाद ये कैसे हो जाते हैं? सॉफ्ट हो जाते हैं. सोकिंग के पहले कैसे रहते हैं? बहुत ही हार्ड रहते हैं, ड्राइड रहते हैं. दिस मेक्स इजियर टू ग्राइंड देम एंड टू बॉयल देम. जब हम इन चीजों को सोक कर देते हैं, when we soak them, then it becomes easier to grind them. We can easily grind them in the mixer grinder, or we can easily boil them, and it takes less time for cooking. This helps in saving time and energy. That's why we soak some eatable grams or these things before cooking. Now let's see the second question. What things do you eat after sprouting? Sprout करने के बाद आप कौन कौन सी चीजों को खाते हैं? How are they sprouted? वो कैसे स्प्राउट होते हैं? मीन्स उसमें जो अंकुरित हो जाते हैं चने, वो कैसे अंकुरित होते हैं? How much time does it take? ये कितना टाइम लेता है? So the answer is, we eat चना, जैसे कि गोपाल ने अभी भिगोए थे. क्या भिगोए थे गोपाल ने? चने, मूंग एटसेट्रा आफ्टर स्प्राउटिंग. सो वी ईट चना, मूंग आफ्टर स्प्राउटिंग. दे आर सोक्ड इन वाटर ओवरनाइट. हम क्या करते हैं? रात भर के लिए उनको रख देते हैं पानी में, जिससे पानी उनके अंदर फ्लो कर जाता है. देन द वाटर इज ड्रेन्ड आउट and they are kept in a basket or suspended in a cloth so that they can get air. और जब हम सुबह उठते हैं, what we do? The excess water is drained out, and for sprouting we kept them in a basket or suspend in a cloth so that they can get air. Means for sprouting air is necessary. Chana takes about 36 to 48 hours. Means chana takes approximately 2 days to sprout, while मूंग takes only about 24 to 36 hours. और जो मूंग होती है, that take only 1 day to sprout. And why these sprouted chanas are very important for us? Because they are very nutritious for us, प्यारे बच्चों. They contain so many proteins that are needed by the
growing children. So you must eat these sprouted chanas instead of your fast food and all that. Now the last question is, has the doctor or someone you know ever told you to eat sprouts? क्या कभी डॉक्टर या किसी और ने आपसे कभी स्प्राउटेड चना को खाने के लिए स्प्राउटेड चना को खाने के लिए कहा है या फिर क्यों? Yes, doctor has advised me to eat sprouts. Why? Because they are very nutritious. Because they are very nutritious. They contain so many proteins that are needed by the growing child. So you must eat some sprouts. Now we will do this activity. Do you remember that in class 4 you did an activity with seeds? Now try another one. Take some chana and 3 balls. What you have to do प्यारे बच्चों, you have to take 3 balls. ठीक है, 3 कटोरी लेने हैं और उसमें हमको कुछ चने लेने हैं. Put 5 चना in the first ball and fill it up with water. आपको क्या करना है, पहले बॉल में 5 चने डालने हैं और उसको जो है पानी से भर देना है. Now put a damp piece of cloth or some cotton wool in the second ball. फिर आपको दूसरा बॉल लेना है और उसमें क्या करना है, एक कोई गीला कपड़ा या फिर कॉटन आपको उसमें रख देना है. नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चनास इन इट. मीन्स 5 चने आपको इस सेकेंड बॉल में भी रखने हैं. मेक श्योर दैट द कॉटन वूल और क्लॉथ रिमेन्स वेट. लेकिन आपको यह जरूर ध्यान देना है कि जो आपने क्लॉथ रखा है या जो कॉटन वूल रखी है वो गीली जरूर होनी चाहिए. मीन्स वेट जरूर होनी चाहिए. Put the same number of chanas in the third ball. और फिर क्या करना है, आपको थर्ड बॉल में भी सेम नंबर ऑफ चनास को रखना है. Do not put anything else in it. Cover all the 3 balls. आपको तीसरी कटोरी में और कुछ नहीं डालना है और फिर इन तीनों कटोरियों को आपको क्या करना है, कवर करके रख देना है. You can clearly see this in this picture. There are 3 balls. Ball number 1. This one is 2 and this one is 3. क्या करना है आपको फर्स्ट बॉल में क्या करना है, 5 चने डालने हैं. You have to put 5 chanas and then you have to fill this ball with water like this. ठीक है. Now you have to now in the second ball what you have to do, you can take a wet cloth or cotton. लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिया है, जैसे कॉटन लिया. ठीक है, तो आपको कॉटन को गीला कर देना है, पानी डाल देना है और फिर उसमें सेम नंबर ऑफ चनास मीन्स 5 चनास को उसमें रख देना है. ठीक. और तीसरे बॉल में आपको क्या करना है, तीसरे बॉल में आपको सिर्फ 5 चनास को पुट करना है और ना ही इसमें पानी डालना है ना कॉटन डालना है. और क्या करना है, इसको ढक करके रख देना है. देन यू हैव टू ऑब्जर्व इट. देन आफ्टर 2 days you will see like this. This is ball number 1, this one is 2 and this one is 3. What will happen to the chanas that we kept in ball number 1? They will swell up. क्यों? क्योंकि हमने इसमें पानी भरा था तो ये स्वेल कर जाएंगे. लेकिन जो हमने दूसरी कटोरी में चना रखे थे ये कैसे हो गए हैं, these are sprouted. Why? ये स्प्राउटेड क्यों हो गए हैं, इनमें स्प्राउट्स कैसे निकल आया है, ये हम अभी आगे देखेंगे. और तीसरे में क्या हुआ है, तीसरे में चने जैसे हमने रखे थे ये वैसे के वैसे ही हैं. So what you have to do, you have to take 3 balls and what I instructed before this you have to do that. And after the 2 days what you will observe that you have to write in this table. What you will observe, are the seeds getting air? क्या जो वो सीड्स रखे थे हमने, ग्राम रखे थे, क्या उनको एयर मिल रही थी? तो बॉल 1 में हमने क्या किया था, 5 चने रखे थे और उसको पानी से भर दिया था, जो उसको एयर क्या हो रही थी, नहीं मिल रही थी. बॉल 2 में हमने क्या किया था, सिर्फ कॉटन वूल लिया था जिसको गीला कर दिया था और उसके ऊपर चने रख दिए थे. मीन्स वो फुली
जो है पानी के अंदर चनेज नहीं थे, तो क्या हुआ था, उनको जो है एयर मिल रही थी। यस यस, उन चनास को जो है एयर मिल रही थी। एंड इन बॉल 3 आर द सीड्स गेटिंग एयर। बॉल 3 में हमने क्या किया था, हमने पानी नहीं डाला था, जो उसको भी जो है एयर मिल रही थी। नाउ द क्वेश्चन इज, आर द सीड्स गेटिंग वाटर? क्या सीड्स को पानी मिल रहा था? तो बॉल 1 में हमने क्या किया था, हमने पानी डाल दिया था, जो उसको पानी मिल रहा था। यस। बॉल 2 में भी हमने पानी डाला था, जो उसको पानी मिल रहा था। यस। बॉल 3 में हमने पानी नहीं डाला था, जो उनको पानी नहीं मिल रहा था। सो द आंसर इज नो। व्हाट चेंजेस डिड यू सी? आपने क्या चेंजेस को देखा? तो बॉल 1 में क्या चेंजेस हुआ था, जो चनास थे हमारे वो क्या हो गए थे, स्वेल अप हो गए थे। बॉल 2 में क्या हुआ था, चना हमारे स्वेल तो हो गए थे और उनमें स्प्राउट्स भी निकल आए थे। और थर्ड में क्या था, कोई चेंज नहीं हुआ था। एंड द लास्ट वन इज, हैव द सीड्स स्प्राउटेड? क्या सीड्स जो है स्प्राउटेड हो गए थे? क्या उनमें स्प्राउट्स निकल आए थे? बॉल 1 में नो, बॉल 2 में यस, द लास्ट वन नो, क्योंकि हमने उसमें पानी ही नहीं डाला था। ये प्यारे बच्चों, ये जो एक्टिविटी है ये आपको करना है और अपनी बुक में इनके आंसर्स को आपने लिखना है। जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो बुक में करेंगे और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी कॉपी में अभी लिखेंगे इनको। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, इन विच बॉल डिड द सीड्स स्प्राउट? जो हमने ये एक्टिविटी की है उसमें किस बॉल में जो है चने में जो सीड्स हैं वो स्प्राउट हो गए थे? What difference did you see between this ball and the other balls? What difference you can observe between the ball number 1, 2 and 3? So the answer is, seeds could sprout in bowl 2 only. जो बाउल 2 है हमारा सिर्फ उसी में जो है स्प्राउट्स निकले हैं। इन द बाउल 2 the seeds got air, water and warmth, hence could sprout. So प्यारे बच्चों कि हमारे तो चने में स्प्राउट्स पड़ते हैं, वो कैसे पड़ते हैं? सो द आंसर इज, जो हमारी सेकंड बॉल है उसमें क्या क्या मिल रहा है? चनों को जर्मिनेट होने के लिए, सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए एयर भी मिल रही है, मींस एयर इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। वाटर भी मिल रहा है एंड वार्मथ मींस जो रूम टेम्परेचर है हमारे कमरे का वो भी थोड़ा सा उसमें पुशअप करता है चनों को जर्मिनेट करने के लिए। अगर हम इन चनों को फ्रिज में रख लेंगे तो जनरली ये इजीली जर्मिनेट नहीं होंगे। सो द कंडीशंस दैट आर नेसेसरी फॉर द सीड्स टू स्प्राउट आर, द सीड्स must get air, water and some warmth. On the other hand, in bowl 1 only water was available. क्यों? हमने सिर्फ पानी से तो भर दिया इसको, लेकिन इसको एयर नहीं मिल रही थी। And hence the seeds could not sprout. And in bowl number 3 there was no water. bowl number 3 में तो हमने पानी नहीं भरा था and वहां पर कोई एयर भी नहीं थी, and no air and hence seeds could not sprout. ठीक प्यारे बच्चों। The next question is, why did Gopal's mother tie the chana in a damp cloth? जो हमने सबसे पहली स्लाइड में अपने देखा था कि गोपाल की मम्मा ने चनास को डैम्प मीन्स गीले कपड़े में बांधने के लिए क्यों कहा था? क्योंकि वो स्प्राउट करना चाह रही थी, तो गीले कपड़ों में क्यों बांधने को उन्होंने कहा था? सो द आंसर इज, गोपाल मदर्स टाइड द चना इन अ डैम्प क्लॉथ सो दैट सीड्स कुड गेट बोथ एयर एंड वाटर। तो डैम्प क्लॉथ में बांधने से क्या हो जाएगा, हमारे चने तो पहले स्वेल अप कर गए मीन्स उसके अंदर वाटर तो है, और जब हम डैम्प क्लॉथ में उसको बांध देंगे तो उनको एडिशनल सप्लाई ऑफ वाटर तो हो ही रही है, एंड इन दैट क्लॉथ दे कैन गेट एयर ऑल्सो। और जो रूम टेम्परेचर है तो उसको टेम्परेचर भी थोड़ा सा गर्म मिल रहा है, जिस वजह से क्या होगा, हमारे चने जो हैं वो, जो हमारे सीड्स हैं वो स्प्राउट कर जाएंगे। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। This picture is of masoor dal and this is whole masoor dal, and when we split this masoor dal we get this dal.
ठीक है, जब हम ये हमारी जो है साबुत मसूर है जिसको हम खड़ी मसूर बोलते हैं, और जब हम इसको स्प्लिट कर देते हैं तो ये हमें कुछ इस तरीके से मिलती है। नाउ लुक एट दिस, 2 cotyledons in seed मीन्स 2 cotyledon। इस पिक्चर में जैसे हमने देखा प्यारे बच्चों कि ये मसूर दाल इस तरीके से दिख रही है, जब हम इसको स्प्लिट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाती है। मीन्स एक मसूर की दाल के चने में जो है वो 2 पार्ट्स हैं, मीन्स 2 cotyledons हैं, ठीक है ना, 2 cotyledons है, क्योंकि जब हमने उसको स्प्लिट किया तो एक ही जो है मसूर की दाल वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गई, जो कि कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। जो हमारी दाल्स वगैरह होती हैं, जैसे हमने जो सीड्स स्प्राउट किए थे, चना, ग्राम वगैरह, तो वो स्प्राउट्स कैसे हो जाते हैं, तो जो ये कॉटिलेडन्स होते हैं प्यारे बच्चों, जो 2 कॉटिलेडन्स सीड में होते हैं, इसके अंदर जो है हमारा एक बेबी प्लांट भी छुपा होता है। तभी तो इन छोटे प्लांट, इन बीजों से, इन सीड्स से बड़े बड़े पौधे निकलते हैं। तो वो कैसे होता है, जो ये बेबी प्लांट छुपा होता है वो किस कंडीशन में बाहर आता है, जैसे कि हमने बताया, उसको वाटर चाहिए, उसको एयर चाहिए और सम वार्मथ, ठीक है, थोड़ी सी गर्मी। तो जो ऊपर का पोर्शन होता है जो बाहर निकल आता है वो कहलाती है लीव्स, जो मिडिल का पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज स्टेम, एंड द लोएस्ट पार्ट इज कॉल्ड रूट। ओके प्यारे बच्चों, और जो ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट होते हैं तो इसको बोलते हैं डाई। डाई मीन्स 2, कॉटिलेडन्स मीन्स 2 बीज, ठीक है। इसी तरह मोनोकॉट भी होते हैं जिनमें सिर्फ एक बीज होता है। So here is the end of the video. In the next video we will discuss the germination of the seeds and the dispersal of the seeds. मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के साथ यहाँ पर छोड़ता हूँ बच्चों, कि आप सोचिएगा कि जैसे अगर एक जगह पर कोई पेड़ उगता है तो वही पेड़, जैसे कि मैंगो है फॉर एग्जांपल, ये इंडिया में होता है, तो यही पेड़ फॉरेन में भी कैसे उगते हैं, या फिर अगर कोई एक पेड़ स्पेसिफिक किसी एक कंट्री में उगता था तो क्या वो किसी और कंट्री में भी अब पाया जाता है, तो ऐसा कैसे हुआ, ये आपको सोचना है कि सीड्स इतनी दूर तक कैसे आ गए, हवा से आए कि इंसानों से आए या जानवरों से आए, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। And also do remember to complete this activity. You have to take 3 balls and you have to do as instructed in the video. So thanks for watching. Have a good day. Bye bye.